Dear students, today I am going to teach you the lesson My Childhood. Abdul Kalam's biography is titled Wings of Fire. Means his biography has been given a name, has been given a title or a name, that is Wings of Fire. And the chapter My Childhood, means this lesson My Childhood, talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. Talks about means gives some informations, describes, reveals, depicts what the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India, as we know, and successful president of India. Really, he deserved for this respect. And a great scientist too. Being a great scientist, he served India most. That is why he deserved for this respect to be the president of India. APJ talks about his upbringing in this lesson. He talks about means he describes, वो बातें करते हैं अर्थात बताते हैं about which, किसके विषय में, about his upbringing, about his nourishment, fostering, परवरिश के बारे में बताते हैं. His parents, he also reveals something more important about his parents. And siblings. Siblings means सहोदर और सहोदरा को कहते हैं. Means real brother and sisters. In short, it may be said that he talks about his family. He talks about his father, his mother, his brother, his brothers. He tells us about his friends. He also tells us about his friends. And all those things, he tells about all those things that influenced his childhood, that affected his childhood. उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये बातें करते हैं इस लेसन में, जिन चीज़ों ने उसके बचपन या उनके बचपन को प्रभावित किया. It was the introduction of the lesson.
we have known about the introduction of the lesson कि this lesson revolves around the childhood of APJ Abdul Kalam. Now, I have selected all the basic informations from the lesson. Means the gist of the lesson. And those informations I am going to tell you. I am going to tell you those information to you here in this video. My childhood is an extract taken from the biography of APJ Abdul Kalam. So this lesson, as you know from the introduction, this is an extract. Extract means gist. Parable, उद्धरण, शार. Taken means that has been taken from the biography, जीवन वृत्तांत से ऑफ APJ अब्दुल कलाम जी के अब्दुल कलाम जी के जीवन वृत्तांत से ये माय चाइल्डहुड नाम का लेसन लिया गया है. एंड द नेम ऑफ हिज बायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर. He was a great scientist, महान वैज्ञानिक थे, and also 14th president of India. You are to remember this information. He was the 14th president of India. He was born in middle class Muslim family in 1931. Means he got his birth. उन्होंने अपना जन्म पाया, वो पैदा हुए थे. Where? In middle class Muslim family. मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था. इन विच ईयर? इन 1931, 1931 में. एंड वेयर? इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु. I think you know better about island. This is the part of land that is surrounded by water. जमीन का एक हिस्सा होता है जो पानी से घिरा होता है. That is called island. So there is island town of Rameswaram. And that is situated in which state? Tamil Nadu. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, as we are also influenced with our parents. Parents are our gods.
they have given us what? This golden body. So they are God. They are not considered as God, but they are God. वो माने नहीं जाते हैं भगवान हैं. They are our creators. We must be thankful, gratitude to them all the time till our death. We cannot repay this debt throughout our whole life. So he was greatly influenced by his parents. Means his parents were his ideals. आदर्श थे उसके पिता माता पिता, उनके माता पिता. और किससे प्रभावित थे? His teachers. After the parents, our teachers create us. There are two bodies into us, into our personality. First is physical. This is physical. That has been gifted by our parents. And second is mental. That is created by our teachers. So secondly, he was greatly influenced by his teachers. Means he was an obedient student of his teachers. And he was also greatly influenced by his friends. Means he had good friends. His father, उनके जो पिता थे, Jainulobbdin, the name of his father. Jainulobbdin was the name of his father. Was not highly educated. वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे. But he was a generous and kind person. Sometimes in my regular class, I say, मैं कहता हूँ, if यदि the guardians want to make their children doctors and scientists, but not make what? A real human beings, they are going to give demons to the society.
education is important in life, but human qualities are equally important. Although his father was not highly educated, literate, he was generous. Generous means liberal. Liberal means charitable. Beneficent. दरिया दिल, उदार हृदय के थे। And kind person means kind hearted. These are the valuable qualities of humanity. मानवता के बहुत मूल्यवान विशेषताएं हैं। And I say that these two are the gems of personality, jewels of personality. ये व्यक्तित्व के आभूषण हैं। We must be kind-hearted. He was not rich, वो धनी तो नहीं थे, but provided means gave what? A secure, सुरक्षित, safe. Childhood means बचपन दिया to अब्दुल को and his siblings और उनके brothers and sisters को। Abdul inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. अब्दुल इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत में प्राप्त, माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं, जो माता पिता देते हैं, विरासत में कहते हैं ना जिसको मिलता है, विरासत में प्राप्त करना। व्हाट? ऑनेस्टी, ईमानदारी प्राप्त की थी विरासत में, मीन्स अपने पेरेंट्स से। और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, अपने आप को अनुशासित रखना। We must be self-disciplined if we want to cover a long, prosperous distance of life. We must be self-disciplined. हमें आत्म अनुशासित होना ही चाहिए अगर हमें बहुत लंबी, प्रॉस्परस, वैभवशाली, बहुत लंबी यात्रा जीवन की तय करनी है। और किससे प्राप्त की थी ये दोनों विशेषताएं? फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। माँ से भी मिला कुछ, क्या? फेथ इन गुडनेस। फेथ मीन्स ट्रस्ट, बिलीफ। और किस में? इन विच? गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, अच्छाई में विश्वास करना। जब अच्छाई में विश्वास करेंगे तभी हम अच्छाई के रास्ते पर चल पाएंगे।
when we have belief, trust in goodness, then we will proceed on that path. तभी हम उस रास्ते पर चलेंगे। और अपनी माँ से क्या सीखा, एक चीज़ और सीखी, डीप काइंडनेस, गहरी दयालुता सीखी फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। कलाम entered his first wages, earned his first wages. Wages means salary. मेहनताना, मजदूरी भी कह देते हैं। सबसे पहली कमाई उन्होंने की बाय वर्किंग, काम करके, एज अ हेल्पिंग हैंड, हाथ बटाकर, मदद करके। और किसकी? टू हिज कजिन, अपने कजिन की, अपने कजिन की उन्होंने मदद की। And the name of his cousin was Samsuddin. और किस तरीके से मदद की? वो क्या करता था शमसुद्दीन? Who distributed, वितरित करता था, न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम में वो न्यूज़पेपर बांटता था। उसके साथ में इन्होंने भी बंटवाया होगा, तो उसने इनको कुछ धन दे दिया होगा। तो ये उनकी पहली सैलरी थी, पहली कमाई थी। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उनके तीन क्लोज फ्रेंड्स थे। दे वर वेरी आइडियल फ्रेंड्स। कौन कौन थे? पहले थे रमानाथ शास्त्री। अरविंदम सेकेंड, एंड थर्ड शिव प्रकाशन। दीज वर हिज फ्रेंड्स, ये उनके साथी थे। वंस एक बार की घटना बता रहे हैं। ही इज टेलिंग एन इंसिडेंट of his childhood here. When he was in 5th standard, means when he was in 5th class, जब वो 5वीं क्लास में थे, तो a new teacher asked him, एक नया अध्यापक आया होगा, तो उसने इनसे बोला। आस्क के बहुत से मतलब होता है, ऑर्डर देना भी होता है। नॉट टू सिट, न बैठने के लिए बोला। इन द फ्रंट रो, पहली पंक्ति में, एलॉन्ग विद हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज, ऊंची जाति के ब्राह्मण लड़कों के साथ न बैठने के लिए इनसे उसने कहा। मीन्स it shows that there was casteism there, जातिवादिता थी वहाँ। and it is the cruelty of humanity, ये मानवता की क्रिवेलिटी, निर्दयता है और कुछ नहीं है।
अब्दुल फॉलोड हिम, अब्दुल ने उसका अनुसरण किया। भाई टीचर है, ही वॉज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ही फॉलोड हिज ऑर्डर, उसके आदेश का उसने पालन किया। तो जब जिस समय वो जाने लगा पहली पंक्ति से उठकर पीछे लास्ट वाली पंक्ति में, तो उस समय उसने अपने साथी रामनाथ शास्त्री को देखा। तो जब देखा तो ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। बच्चों के दिल में कास्टिज्म नहीं होती है, ये जो अडल्ट्स लोग होते हैं ना, ये कास्टिज्म का बीज बो देते हैं उनके अंदर। और जब ये ऊंची जाति वाले बीमार पड़ते हैं ना, और बाई चांस इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड बैंक से जब ब्लड लाया जाता है, तो ये नहीं कहा जाता वहाँ कि भैया पंडित लोग हैं, हम लोग ऊंची जाति के लोग हैं, तो ज़रा ऊंची जाति वाला खून देना, ब्लड देना, ऐसा नहीं है। तो लोएस्ट कास्ट का भी खून अगर उनके ग्रुप से मिल रहा है तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे। तो अब्दुल फाउंड रामनाथ शास्त्री वीपिंग, रोते हुए उसने पाया अर्थात देखा। एज ही वेंट टू द लास्ट रो, जैसे ही वो अंतिम रो पर गया, अंतिम पंक्ति में गया बैठने के लिए। दिस इंसिडेंट इवेंट मेड अ लेस्टिंग impression on अब्दुल। लेस्टिंग मीन्स स्टेबल, स्थायी। इम्प्रेशन मैंने प्रभाव डाला ऑन अब्दुल पर। Abdul was also greatly influenced by his science teacher. अब्दुल अपने विज्ञान के अध्यापक से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अब देखो विज्ञान के अध्यापक से क्यों प्रभावित था, क्योंकि उसको उसी दिशा में जाना था। जिसको जिस दिशा में जाना होता है, जो नियति होती है ना, जो नेचर होती है ना, उसको उसी के साथ जोड़ देती है। अगर मानववादी विचारधारा का व्यक्ति है तो भटकने नहीं देती है वो। क्या नाम था इनका? शिव सुब्रमण्यम अय्यर नाम था टीचर का। He learned the lesson of breaking social barriers from him. What are these social barriers? ये सोशल बैरियर्स क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, हिंडरेंसेस क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, all those barriers which divide us, which divide the society in communities, creeds, these are social barriers. तो इन सोशल बैरियर्स को कैसे तोड़ा जाए, ये पाठ उसने अपने अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से सीखा। बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अय्यर साहब। तो अय्यर इनवाइटेड हिम टू हिज होम फॉर अ मील। भोजन के लिए अय्यर ने अब्दुल को, कलाम जी को आमंत्रित किया कि बेटा घर में आना, खाना बनवाएंगे।
खाना खाना। लेकिन अय्यर साहब की जो पत्नी थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, कंजर्वेटिव थी, अभी जातिवादिता के चक्कर में वो फंसी थी। तो his wife refused to serve food to a Muslim boy in her pure kitchen। माने उस जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनका किचन प्योर होता है और बाकी सभी जातियों की जो किचन होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। जबकि हर एक किचन में तो कोई गंदगी नहीं फैलाता ना, इतना तो हाइजीनिक इम्पोर्टेंस सभी जानते ही हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। और काहे के लिए? टू सर्व, परोसने के लिए, कि हम नहीं परोसेंगे फूड, भोजन एक मुस्लिम लड़के को, और कहाँ? अपने पवित्र किचन में। अय्यर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स। पत्नी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अय्यर जी ने उनको परोसा खाना, कलाम जी को खाना परोसा अपने स्वयं के हाथों से। और इतना ही नहीं, सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। अपना भोजन करने के लिए भी उसके बगल में बैठ गए। बाद में he convinced his wife। उन्होंने, अय्यर जी ने अपनी पत्नी को मना लिया, आश्वस्त कर लिया। टू सर्व मील, अर्थात भोजन परोसने के लिए, विद हर ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से। दस, इस प्रकार, was successful in changing her conservative attitude। इस प्रकार अय्यर became successful, सफल हो गए। और काहे में? इन चेंजिंग हर कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, जो उसका रूढ़िवादी एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, उसको बदलने में वो सफल हुए। For higher education, Abdul Kalam South means wanted permission from his father to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram। उच्च शिक्षा के लिए अब्दुल अपने पिता से परमिशन चाहते थे। और काहे की? रामेश्वर छोड़ने की, घर छोड़ने की। और कहाँ जाने की? स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिला मुख्यालय जाने की। और कहाँ था? इन रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, वहाँ जाकर पढ़ाई करने की अनुमति चाहता था। His father said that Abdul had to go a long way in life। उसके पिता ने उससे बोला कि बेटा अब्दुल, had to go a long way, बहुत लंबी दूरी तुम्हें जाना है जीवन में। और वास्तव में उसने बहुत, अब इससे भी लंबी दूरी क्या है? Means he became successful to achieve
द हाईएस्ट रिस्पेक्ट इन इंडिया। अब किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो उसके बाद फिर और क्या बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है कुछ नहीं, कुछ बनाया जा सकता। तो इतना बड़ा सम्मान मिला उसको। और किसकी तरह? जस्ट लाइक सीगल बर्ड। सीगल बर्ड समुद्री चिड़िया को कहते हैं। वैसे हम लोगों की तरफ ये नदियों के किनारे में कभी कभार दिखती है सीगल, तो हम लोग इसको गंगा चिल्ली पक्षी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि विच फ्लाइज लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबी दूरी तक ये उड़ती है। तो जो बहुत लंबी दूरी तक उड़ती है, तो इसका मतलब अब्दुल कलाम को भी अपने जीवन में बहुत लंबा सफ़र मीन्स लंबी यात्रा पूरी कर दी। He calmed down APJ's reluctant mother by quoting Khalil Gibran's poem. कहलिल गिब्रेंस की कविता का उदाहरण देकर उन्होंने अर्थात उसके पिता ने, रिलेक्टेंट कहते हैं अनिच्छुक, उसकी माँ की इच्छा नहीं थी। तो अब ये समझ लो हर डियरमेंट was compelling him, forcing her, not to leave her child. endearment जो था उनका, जो दुलार था, प्यार था, वो उसे बाध्य कर रहा था कि वो अपने बच्चे को न छोड़े। तो अनिच्छा से भरी हुई थी उसकी माँ। योर चिल्ड्रन नाम की जो कविता है कहलिल गिब्रांस की, उसका उद्धरण देते हुए उसको समझाया। ही सेड, उन्होंने कहा, उसके पिता ने कहा, दैट हर चिल्ड्रन कुड नॉट बी डोमिनेटेड बाई हर। उसके बच्चे मतलब माँ के बच्चे कुड नॉट बी डोमिनेटेड मीन्स गवर्नड बाई हर, नहीं बनाए जा सकते हैं, डोमिनेट नहीं किए जा सकते हैं। बिकॉज उनको गवर्न नहीं किया जा सकता है, को रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? दे हैड देयर ओन थॉट्स, क्योंकि वे उनके अपने स्वयं के विचार हैं। बच्चों के अपने स्वयं के विचार हैं। अब एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, सपोज, अब तो आजकल होते ही नहीं, लेकिन उन लोगों के परिवार में होते हैं। तो अब चारों बच्चे केवल क्या एक ही रास्ते को चुनेंगे जीवन के? विल दे चूज और सिलेक्ट वन पाथ फॉर मेकिंग देयर करियर?
इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनमें से कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेस करेगा, कुछ न कुछ अलग अलग करेंगे सब। तो चिल्ड्रंस आर द मास्टर्स ऑफ देयर ओन थॉट्स, तो दे कुड नॉट बी डोमिनेटेड। दे डिड नॉट बिलोंग टू हर। ये भूल जाना चाहिए माँ के लिए विशेषकर। पिता तो तैयार है, माँ दुलार की वजह से नहीं छोड़ना चाहती अपने बच्चे को। बाहर जाना है अगर तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही करती है माँ, और इंडियरमेंट्स के कारण। इंडियरमेंट कहते हैं दुलार के कारण, प्यार के कारण। अब ये तो ह्यूमन फीलिंग है, सारी माताओं को ऐसा महसूस होता है। ऑल द मदर्स फील इट। तो कहते हैं कि दे डिड नॉट बिलोंग टू हर, वे उससे संबंधित नहीं थे। मतलब बच्चे हैं अपनी माँ से संबंधित, वैसे नहीं अपने करियर के लिए उससे संबंधित नहीं। बट वर द रिजल्ट ऑफ लाइफ डिजायर्स फॉर इटसेल्फ। जीवन की जो स्वयं की इच्छाएं होती हैं उन्हीं के परिणाम है वो। He asked her to give them freedom. उन्होंने, उनके पिता ने उसकी माता से, हर का मतलब उसकी माँ से बोला कि वो उन्हें आज़ादी दे। और किस लिए? टू फुलफिल देयर थॉट्स, ताकि वे अपने विचारों को पूरा कर सकें। पूरा करने के लिए ये कर सकें, सो दैट दे कुड बी एबल टू फुलफिल their desires and thoughts, are so that they could make their careers. I will send you the questions and answers of this lesson in the group. Now we will meet again in the next video with the next lesson. Thank you for watching this video. God bless you a lot.